and in selection of the transformant having a recombinant plasmid, we have discussed about this antibiotic resistance, and that is creating some complexities in the cell. We have to plate on two different plates. One second. Okay. Two and plates having this antibiotics is required. So complexity is there. So one different system is there, that is to choose another selectable marker for selection of transformant having recombinant plasmid. So what is that? Let us discuss. Okay, so here we are having this PBR 322, but we are changing the selectable marker here. So instead of using this ampicillin resistance or tetracycline resistance, we are putting one. Instead of these two genes, we are putting one gene, that is LECZ. Okay, okay, LECZ gene. Okay, so LECZ gene is a gene which is encoding for one enzyme, that is beta galactosidase. गैलेक्टो, थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, माउस से लिख रहा हूँ मैं, गैलेक्टोसाइडेज. एंड व्हाट दिस एंजाइम, दिस इज कन्वर्टिंग दिस this lactose into, one second, lactose into glucose plus galactose, glucose plus galactose. So these are the products which are obtained by degradation of this lactose by enzyme beta galactosidase. Galactosidase converts this lactose into glucose and galactose, and this is done by this enzyme, and this enzyme is called one gene, that is LECZ. This is the basic biology of this LECZ gene. So let us discuss what is happening here in this. How we are selecting the colonies here, and the transformant one. So what we are doing here, whenever this one second, this LECZ gene is here, and what we are doing, if LECZ gene is encoding for beta gal, in short, for beta galactosidase we are using word beta gal, and beta gal is converting one product, that is X-gal. What is that? X-gal or X-gal भी अपन बोल सकते हैं उसको. It is degrading this X-gal. This is a chromogenic substrate. Chromogenics means while degrading, while this product is degraded, blue color is produced. यानी कहने का मतलब, अगर आपने कल्चर मीडिया में इस सेल को डाला और ये वाले बैक्टीरिया को आपने किसी प्लेट में ग्रो करवाया, और इस न्यूट्रिएंट प्लेट में आप पहले क्या डाल रहे थे? एंटीबायोटिक डाल रहे थे, और यहाँ पे इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? एक प्रोडक्ट, दैट इज एक्स-गैल. एक्स-गैल क्या करता है? इस बैक्टीरिया जिसमें हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, दिस क्लोनिंग वेक्टर विच इज हैविंग दिस जीन LECZ, and when this LECZ is coding for beta galactosidase enzyme, this beta galactosidase is converting or degrading this X-gal product. X-gal product is degraded. X-gal product जैसे degrade होता है, blue color is produced here in this one. So this is the new selectable markers instead of using antibiotic resistance and this ampicillin and tetracycline one.
So let us discuss how can we insert and how can select the colonies. Okay. Okay. This is our cloning vector, and it is having this LegZ gene. This LegZ gene is there, which is shown in red. So we need to our DNA insert or gene update in this plasmid vector also. तो और कहीं डालेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, we will cut this LegZ gene. तो LegZ gene को कट करके अपन यहाँ पर in between of this LegZ gene we are inserting this DNA insert or gene of interest. DNA इंसर्ट को अपन यहाँ डालेंगे और यहाँ पर इससे क्या होगा, द जीन LegZ जीन विल बी डीएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी जीन के बीच में अगर ब्रेक लगाकर उसमें कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर देते हैं तो उस जीन की फंक्शनल पावर जो है वो खत्म हो जाती है. दैट जीन विल बी इनएक्टिवेटेड, इट इज नॉट फंक्शनल. ठीक है, तो उसकी वजह से उस जो एंजाइम बनना चाहिए था LegZ वो नहीं बनेगा. अब क्या करते हैं, हम इस क्लोनिंग वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल में डालेंगे. ग्रीन में जो बैक्टीरियल सेल दिखाई है उसमें अपन उसको डालेंगे. एंड दिस बैक्टीरियल सेल इज हैविंग दिस क्लोनिंग वेक्टर. दिस क्लोनिंग वेक्टर इज हैविंग दिस जीन in green, DNA interest, gene of interest in this one. So this is transformant cell having a recombinant plasmid. Recombinant plasmid is why? Because this plasmid is having two things. One is plasmid vector DNA and another is inserted here. So whenever we are putting this bacteria on a colony, on this Petri plate having X-gall product, this nutrient media is having X-gall, and the X-gall is degraded by the enzyme beta, which is encoded by this DNA, this LegZ gene. But what is happening here in this case, the X-gall is not degraded here because we have done what? We have inserted our gene of interest in LegZ gene. So LegZ gene is non-functional. Beta-galactosidase enzyme is not produced. So the X-gall will not be produced here, and all the colonies, bacterial colonies, will be fight. In another case, if this bacteria is having this cloning vector, and this cloning vector is having LegZ gene, but DNA is not inserted in between this one, that may be missed. The cloning vector might not be having this DNA insert in the LegZ gene. जो रेड में दिखाया है वो LegZ gene है, और जो ग्रीन में यहाँ पे दिखाया वो हमारा क्या है, DNA insert जो LegZ gene में करवाया हमने. तो this cell is also transformant, this cell is also transformant, number 1, number 2. But first cell is transformant without recombinant. Second cell is transformant cell with recombinant plasmid. So what will be happening while we are growing it on the Petri plate having X-gall? Then what will happen? This LegZ gene will be operational, and it will be causing beta-galactosidase, and beta-galactosidase will be degrading this X-gall. X-gall उससे डिग्रेड होगा, और X-gall डिग्रेड होते ही क्या होगा, ब्लू कलर विल बी प्रोड्यूस्ड. सो हम ये मान सकते हैं कि ब्लू कलर कॉलोनी जो आई बैक्टीरिया की, दोज कॉलोनीज आर इज व्हाट दे आर हैविंग नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, and our gene of interest is not inserted here in this case, but the second colonies which are white in color, they are having recombinant plasmid. This is how we can identify them. So let us see the script here. In this, a recombinant DNA is inserted in the coding sequence of enzyme beta-galactosidase. So gene is inactivated, that is insertional inactivation.
such colonies do not produce color, they are of white color. First case. Second colony, we are talking about second colony. These are identified as recombinant colonies. उनको हम separate कर लेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे. If the plasmid bacteria have no insert means leg-jet gene is there here. It gives blue colored colonies in presence of chromogenic substrate. तो ये क्या करता है, ब्लू कलर की कॉलोनी यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनी आती है, और उसकी वजह से हम दे सकते हैं दे आर नॉट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. ओके, देखिए यहाँ पे दिस plate is showing some white color colonies and blue color colonies in this one. So going into details in next topic, let us see one more thing here. See this one, what is X-gal and one IPTG also, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा. What is the full form of X-gal? Write in your notebook you are having. X-gal full form is 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactoside. This is the full name of this X-gal. It is written here. And one more thing is also there, IPTG. It is also used in this experiment. अब क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. आइसोप्रोपाइल beta-D-1-thioggalactopyranoside. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IPTG. तो ये X-gal इज ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. क्रोमोजेनिक का मतलब while by action of any enzyme on this X-gal, this produces color. वो कलर प्रोड्यूस करता है. इज ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड्स दैट यील्ड्स ब्लू प्रेसिपिटेट अपॉन हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस जब इसका होता है यानी ब्रेकडाउन होता है तो X-gal विल बी प्रोड्यूसिंग ब्लू कलर. और एक्शन लेने वाला एंजाइम कौन है? बीटा गैलेक्टोसाइड्स. Is it clear beta to everyone? Yes or no? Students, please tell me. Okay. The next topic is vectors for gene in plants and animals. The vectors discussed till now are of use for in bacteria only. If you want to insert any gene of interest in a plant or animals, these PBR322 and all these vectors will not be working. वो काम नहीं आते हैं. तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? सेपरेट वेक्टर्स आर टू बी टेकन. फॉर प्लांट्स इट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ए पैथोजन ऑफ मैनी डाइकोट, जो बहुत सारे डाइकोट प्लांट का पैथोजन है. इट इज कॉजिंग डिजीज इन dicot plants, and another one is retrovirus. So what Agrobacterium tumefaciens is doing? So the name Agrobacterium, the name indicates its importance. Tumefaciens. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर एंड बैक्टीरिया. ट्यूमी मतलब कोजिंग ट्यूमर, यानी ये एग्रीकल्चर में जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट्स में नहीं, डाइकोट प्लांट्स में ट्यूमर प्रोड्यूस करता है. दैट्स व्हाई द नेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज देयर फॉर दिस बैक्टीरिया. दिस इज बैक्टीरिया एक्चुअली. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट दिस बैक्टीरिया? लेट अस सी. ओके, इट कैन डिलीवर ए पीस ऑफ DNA, दैट इज tDNA, ट्यूमर DNA और ट्रांसफर DNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर. इस एग्रोबैक्टीरियम का जो DNA होता है उसका tDNA पार्ट ओनली. tDNA कैन ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल ऑफ प्लांट इनटू ट्यूमर सेल. उसको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है. दीज ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन. अभी पैथोजन क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम का जो tDNA है दैट इज इंसर्टेड इनटू द प्लांट सेल, एंड tDNA will be causing the normal cell into this tumor,
and tumor cell will be producing the chemicals which are required by pathogens growth. So this is having one plasmid, that is TI plasmid, tumor inducing plasmid, यानी इसका भी ये बैक्टीरिया है, and all bacteria are having plasmid, this circular extra chromosomal DNA. So this bacteria is having tumor inducing plasmid, is modified into a cloning vector which is not pathogenic but can use the mechanism to deliver gene of interest into plants. अब क्या करते हैं, इसका जो हमें ये पता है कि ये प्लाज्मिड है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, वो खतरनाक है, और क्योंकि ये रोग पैदा करता है, ट्यूमर सेल जनरेट करता है, तो हमने द पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लोनिंग वेक्टर्स आर रिमूव्ड, उसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। और उसके वो डीएनए रहने दिया जो हमारे काम आते हैं, जो अपना डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करते हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड, एंड वी कैन से इन समरी इट इज मॉडिफाइड प्लाज्मिड विच इज नॉट हैविंग पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर इस अपन प्लाज्मिड को डालेंगे किसी प्लांट सेल में, तो वो सेल को, नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि बाय यूजिंग दिस टीआई प्लाज्मिड एंड वी हैव आल्सो दिस टीडीएनए पार्ट, नॉन पैथोजेनिक पार्ट्स आर रिमूव्ड एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड विद इट, एंड दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल, और प्लांट सेल को भी सेलेक्ट करने का अपना तरीका होता है। बट इन एनिमल्स वी आर यूजिंग रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस आपने पढ़ा था एक, अभी ये डिजीज वाले चैप्टर में, एक नाम बता सकते हैं, व्हाट इज द रिट्रोवायरस नेम एंड व्हाई इट इज नोन एज, ऐसा क्यों बोलते हैं उसको? यस स्टूडेंट्स, रिट्रोवायरस, व्हाट इज रिट्रोवायरस? कोई बोलेगा? Retroviruses are viruses which are by using this reverse transcription process, the RNA is converted into DNA. RNA is converted into DNA. Reverse transcription. Okay, ठीक है. So this retrovirus can transform the animal cells, animal normal cell into cancerous cells. उसको कैंसर सेल एंड ट्यूमर कोजिंग है. सो दे आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स. यानी हम क्या करते हैं, हम इसी की प्रॉपर्टीज का, जो इस रिट्रोवायरस का जीनोम है, इसको वी आर मेकिंग इट नॉन पैथोजेनिक, यानी उसमें पैथोजन जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको हम हटा देते हैं, और बाकी का जो कंटेंट जो जीनोम है उसको काम में लेके हम जीन को उस रिक्वायर्ड जो जीन उसका जो डिजायर्ड जीन उसको इंसर्ट करके इसके साथ में एनिमल सेल में इसको भेज सकते हैं. ओके, नाउ अनदर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपिटेंट होस्ट. ये सब काम प्लाज्मिड वेक्टर का हमने कर लिया, उसमें डीएनए इंसर्ट करवा दिया, हमने सिलेक्शन का तरीका भी बता दिया. बट द सेल्स इन विच दिस recombinant plasmid or recombinant DNA is to be inserted, it requires one competent host जो इसको ले सके और अपने अंदर उसकी ग्रोथ या रेप्लिकेशन उसका कर सके. ओके, तो उसकी कहानी पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन बात डीएनए के बारे में कर लेते हैं. डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक नहीं है, रिएक्शन करता है. It cannot pass through cell membrane. इसलिए ये इस कारण से it cannot pass through cell membrane, एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरी सेल मेम्ब्रेन में ये जा नहीं सकता है. So bacterial cell must be made competent to take up alien DNA or plasmid. अब उसको लेने के लिए उसको competent पहले हमें बनाना पड़ेगा कि वो that cell can take up that particular recombinant DNA. वो competent कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं. For this, bacterial cells are first treated with a specific concentration of divalent cation, that is example calcium. तो अपन क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल लिया, उसको पहले ट्रीटमेंट किया किसके साथ में, कैल्शियम आयन के साथ में, कैल्शियम आयन के साथ में उसको ट्रीट किया. सो डीएनए एंटर्स
द बैक्टीरियल थ्रू पोर्स इन। कैल्शियम क्या करता है इसमें, पोर से क्रिएट कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से डीएनए इसके अंदर एंटर हो जाता है। एंड तो फर्स्ट ट्रीटमेंट अपना किसके साथ है, कैल्शियम के साथ। सच सेल आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ठीक है, देन दे आर प्लेस्ड एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट सोक एंड पुट देम बैक ऑन आइस। यानी हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाएंगे किस तरह से इसको इंसर्ट अपन करते हैं। लेट अस सी। पहले प्लाज्मिड है, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। इसको पहले दोनों को प्लस का साइन इसलिए कि इनको हमें इट नीड टू बी इंसर्टेड इनटू दिस बैक्टीरियल सेल, एंड फॉर दिस डीएनए टू एंटर इनटू द सेल वी नीड टू डू फर्स्ट कैल्शियम ट्रीटमेंट। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम आयन कैन बी टेकन। इससे क्या होगा, पोर्स विल बी ओपन इन द सेल वॉल एंड डीएनए विल बी गोइंग इनसाइड। देन वी विल बी पुटिंग इट ऑन आइस के साथ इसको करेंगे। फिर इसको 42 डिग्री हीट सोक देंगे डिग्री सेल्सियस पे इसको अपन गर्म करेंगे, और फिर अगेन वी विल बी पुटिंग इट ऑन आइस। अगर ये इतना काम हम करते हैं इस बैक्टीरियल सेल और क्लोनिंग वेक्टर के साथ में, तो क्लोनिंग वेक्टर विल बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड विल बी बैक्टीरियल सेल इज मेड competent। तो आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ ए बैक्टीरियल सेल इज competent टू टेक अप दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट द प्रोसीजर एंड फ्लो चार्ट, तो आपको ये पहले ये बताना कैल्शियम से ट्रीट किया, फिर आइस से ट्रीट किया, फिर हीट सोक दिया, देन अगेन वी हैव पुट इट ऑन बैक ऑन आइस। दिस enables the other methods to introduce alien DNA into host cell। दूसरी मेथड्स क्या है, माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। जैसे ये सेल है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, सो डायरेक्टली इंजेक्टेड कर दिया जाता है इसको। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। तो ये काम बड़ा सोफिस्टिकेटेड है एंड इट रिक्वायर्स हाई पावर माइक्रोस्कोप एंड ऑल दीज थिंग्स एंड नीडल्स ऑल्सो। सिंपल नीडल से अपन नहीं डालेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक नीडल्स काम में ली जाएगी। अनदर वन इज बायोलिस्टिक गन और जीन गन। सेल्स आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड विद डीएनए। यहाँ जैसे क्या करेंगे अपन, पार्टिकल्स ले लेंगे गोल्ड के या टंगस्टन के, और उसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन कोट कर देंगे, लेप कर देंगे उसके चारों। यानी हम क्या करेंगे, टंगस्टन या गोल्ड के अपन मतलब ये वो उसको फिट कहाँ करेंगे, इस जीन गन के अंदर करेंगे। गन मतलब ऐसे गोली वाली नहीं कि चलाई और सेल तो फट जाएगी, सेल तो अपनी दिखती नहीं है। तो टंगस्टन या जो इनकी गोली जो होती है उसके ऊपर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन कर देते हैं, एंड बाय यूजिंग दिस जीन गन वी कैन इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए into plant cells. This is used for plant cell. Another one is disarmed pathogen vectors. अब ये मेथड हमने रिट्रोवायरस में पढ़ी है कि इट इन्फेक्ट्स द सेल्स, ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। जैसे रिट्रोवायरस है, एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो हमने पढ़ा है, जिसको डिसआर्म्ड करके, यानी बायोलिस्टिक गन इज यूज्ड फॉर plants and this disarmed pathogen vector are used both for plants and animals। और इसके अलावा हमने कंपिटेंट सेल में कैसे डाला है, ये मेथड अपने बैक्टीरिया के साथ में देख लिए। तो 4 मेथड्स यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। ओके, तो ये हमारा टूल्स वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अपन डे में आगे की चीज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एनी प्रॉब्लम हियर बेटा? Do you have any questions? Yes?